and welcome to the last lecture on service tax and VAT. Now we'll just make a partition. First half will take for 5 taxable service जो आपके syllabus में है उसको discuss कर लेंगे, and the remaining half that will be post 6 o'clock will be devoting towards that revision as well as past examination questions. And meanwhile all the branches will also receive the sheet and all the students over here. For PCC and IPCC both, now the effective weightage of service tax has become 15 marks. The reason is, for PCC it was 25 marks inclusive of VAT. So automatically the weightage is 15 marks for service tax and 10 marks for VAT. But जहाँ तक IPCC का सवाल, it is 25 for service tax and 25 for VAT. Now out of this 25 marks in service tax, what they have done is, they have made it two parts, 15 marks for general service tax, which is there here also, and 10 marks for taxable services. So they have given, out of those 110 services, they have given 5 taxable services which you are required to learn in detail. मतलब more or less 10 mark आपको ये 5 taxable service पे ही आएगा, and it doesn't means that कि हर एक सर्विस पे 2-2 मार्क का क्वेश्चन आएगा. It can be in any form, any fashion. What is basically asked from this taxable services, आपको टोटल 5 taxable service याद रखनी है, उनके डेट के साथ याद रखनी है, उनके डेफिनेशन के साथ याद रखनी है, ये याद रखना है कि कब वो टैक्सेबल होगी, कब वो टैक्सेबल नहीं होगी, कब वो एग्जेम्प्टेड होगी, कब वो एग्जेम्प्टेड नहीं होगी, उसका कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाता है. Expected questions are 2 to 4 marks theory question. These theory questions include definitions, exemptions, exclusions and inclusions, and 6 to 8 mark practical question. And practical question जहाँ तक है, जैसा हमारा सर्विस टैक्स का कैलकुलेशन होता है वैसा ही होगा, बट थोड़ा सा इन सर्विसेज से रिलेटेड अबेटमेंट नाम का एक शब्द है, इफ यू रिमेंबर, पार्शियल एग्जेम्पशन, उसके बेसिस पे आपको थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट आ जाता है. So there are in all 5 taxable services for your syllabus. Those are legal services, mandap keeper services, then you have information technology software services, club or association services, and finally commercial training and coaching service. पिछले साल, now these 5 services are there for May as well as November exam, दोनों के लिए सेम ही रहेगा. पिछले साल ऐसे ही कुछ 5 सर्विसेज थी, बट वो अलग थी. खाली एक सर्विस कॉमन है पिछले साल की तुलना में, दैट इज कमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर. नाउ दिस इज अ वेरी बिग सर्विस इन फैक्ट. सो व्हाट इज द कैलकुलेशन वी कैन मेक. शायद पिछले समय वो इससे कुछ पूछना भूल गए थे, तो अभी इस समय रखा है ताकि इस पे वो पूछ लेंगे. सी अगेन, पुटिंग द सेम सर्विस फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर मेक सम लॉजिक बिहाइंड दैट. उस पे लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन था 2 मार्क का थियरी क्वेश्चन, बट हो सकता है इस समय वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ ले. Well, all the branches, as I said you, we are right now starting with 5 taxable service का part, so we will not requiring that sheets right now, and meanwhile post 6 o'clock, by that time the sheets will be made available to everyone. ठीक है. Now let's start with this legal service. लीगल सर्विस आपको इसमें ध्यान रखना है. सबसे पहली बात, इसका सेक्शन नंबर 65 105, इसका इफेक्टिव डेट दैट इज 1 सितंबर 2009. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लीगल सर्विस? कैन यू जस्ट गाइड मी? आपके हिसाब से क्या होता है लीगल सर्विस का मतलब? यस, कंसल्टेंसी. What consultancy exactly means? Okay, मतलब वकालत की चीज.
Is CA service a legal service? Okay. Coming to this point, as you said, consultancy. Basically, सर्विस के अंदर टेंजिबली कुछ नहीं करना होता है, जो कुछ होता है इंटेंजिबल होता है. एनी टाइप ऑफ सर्विस इज ऑलवेज पर्सनल इन नेचर. जनरली हम लोग पर्सनल तौर पे आगे आकर के देते. सो एज वी नो वकील वगैरह, एक्चुअली लेट्स कम टू द लॉजिक. ये सर्विस को पहली बात टैक्सेबल क्यों किया? काफी समय पहले, ऑलमोस्ट इन 1998, CA, ICWA, CS, कुछ हद तक डॉक्टर्स, इन लोगों की सर्विसेज को टैक्सेबल कर दिया गवर्नमेंट. तभी ये लोग बोलते सबको तो टैक्सेबल किया, फिर वकील लोग को क्यों छोड़ा है? तो उनको भी टैक्सेबल कर दो. तो थोड़ा देर से आए लेकिन दुरुस्त आए. और वकीलों की सर्विस जनरली वकीलों की तो नहीं कहलाई जाएगी, बट लीगल फ्रेम की जितनी भी सर्विसेज है, लॉ रिलेटेड जितनी भी सर्विस है, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया? टैक्सेबल. नाउ दिस इज हाउ इट गोज. एनी टाइप ऑफ एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस, ये तीन शब्द. एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन द ब्रांच ऑफ लॉ. कोई भी लॉ के ब्रांच में ये तीन में से आपने कुछ भी दिया, दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? लीगल सर्विस. एडवाइस, एडवाइस का सिंपल आमतौर पे मीनिंग क्या होता है? एडवाइस, ओके, सलाह देना और सजेशन देना और ओपिनियन देना. तो फिर कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है? अगर एडवाइस का मतलब होता है, सॉरी, और एडवाइस में हम जानेगा. कैन यू जस्ट थिंक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड कंसल्टेंसी? That's very good. What you said is कंसल्टेंसी कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ कौन कर सकता है? अब उसके लिए प्रोफेशनल का डेफिनेशन देखना पड़ेगा, फिर अपने को बिजनेस वो इनकम टैक्स में चला जाना पड़ेगा. तो बेसिकली रिमेंबर वन थिंग, एडवाइस भी वही होता है, कंसल्टेंसी भी वही होता है. फर्क क्या होता है दोनों के अंदर? जैसे एडवाइस इज एन ओपिनियन, इज अ सजेशन. कंसल्टेंसी जनरली वो आदमी देता है जो उस चीज में महारत रखता है, एज यू सेड कि प्रोफेशनल. लेकिन जरूरी नहीं प्रोफेशनल ही हो. एनी पर्सन हु इज एक्सपीरियंस्ड कैन गिव यू कंसल्टेंसी, बट एनी पर्सन वेदर एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस कैन गिव यू एडवाइस. अभी इतना छोटा बच्चा अपने को रास्ते पे चलते ये देख के नहीं चल सकता है क्या? सो इट्स एन एडवाइस. एडवाइस कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन. लेकिन जो खड्डे में गिर करके अपने को एडवाइस देगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कंसल्टेंसी. मतलब यहां पर संभाल के चलना चाहिए, यहां पर खड्डा है. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट. सो एनी टाइप ऑफ एडवाइस और कंसल्टेंसी और असिस्टेंस. असिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है हेल्प. इन एनी फॉर्म, in any branch of law, when it is provided, that will be termed as legal service. अब इसमें सबसे मोटे में क्या बोला है? सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर. देने वाला भी बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए और लेने वाला भी बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए. मतलब एकदम क्लियरली बोल दिया है, अगर दोनों में से कोई भी इंडिविजुअल होता है, then this service is not taxable. मतलब अगर एक वकील ने एक कंपनी को एडवाइस दिया या कंसल्ट किया तो वो सर्विस टैक्सेबल. या एक कंपनी ने एक इंडिविजुअल को, एक फर्म ने एक इंडिविजुअल को एडवाइस दिया, वो टैक्सेबल नहीं. मतलब इंडिविजुअल होना ही नहीं चाहिए. इट शुड बी अ बॉडी, आइदर अ फर्म और पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो भी आप बोलोगे. इट शुड बी अ बिजनेस एंटिटी हु इज प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू एनी बिजनेस एंटिटी. विच टाइप ऑफ सर्विस? in the manner of advice, consultancy or assistancy in any branch of law. Say for example, मैंने इसको एडवाइस कर दिया, देख भाई ऐसे खर्चा मत कर पैसा, इससे अच्छा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दे, तेरे को डिडक्शन वगैरह मिलेगा इनकम टैक्स के अंदर. कैन आई से इट इज एडवाइस? इज इट इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ? है ना, डायरेक्ट टैक्स एक लॉ ही है ना वो भी. इज इट इन रिलेशन टू लॉ? दैट विल बी टर्म्ड एज सर्विस. लेकिन सिंस आई एम इंडिविजुअल तो ये सर्विस टैक्सेबल नहीं होगी.